इस वीडियो सीरीज में हम लोग डाटा ट्रांसफ़र स्कीम के बारे में पढ़ेंगे. सो द टॉपिक इज डाटा ट्रांसफ़र स्कीम. And also we will study about input-output port. Input-output port is also known as interfacing devices. माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि डाटा ट्रांसफ़र के बहुत सारे स्कीम्स होते हैं. जैसे एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम का एग्जांपल है कंप्यूटर. कंप्यूटर में क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि बहुत सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है. जैसे कि मेमोरी हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, टू स्टोर डाटा और टू स्टोर प्रोग्राम डाटा. और क्या होता है कि इनपुट डिवाइसेस होता है और आउटपुट डिवाइसेस होता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड होता है. सो फॉर आउटपुट डिवाइसेस, द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस इज मॉनिटर और एलईडी. आउटपुट डिवाइस हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम रिजल्ट को शो कर सकें. एंड ऑल्सो वी यूज़ इनपुट डिवाइसेस. एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस इज कीबोर्ड, we use input devices to feed data to microprocessor. So these components are connected to microprocessor using data bus to transfer data. Input device will feed data to microprocessor, and output device we see results. So this is the example of a microprocessor based system. So what is the main general purpose of microprocessor in this system? माइक्रोप्रोसेसर का काम क्या होगा कि वो इनपुट डिवाइस से डाटा को एक्सेप्ट करे. और दूसरा काम क्या होगा माइक्रोप्रोसेसर का, कि मेमोरी में बहुत सारे डाटा होते हैं. जैसे हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं वो मेमोरी में लिखते हैं, तो उस प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन है उसको माइक्रो प्रोसेसर रीड करे. ये दूसरा काम होगा माइक्रो प्रोसेसर का. और जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या करे, वो डाटा को प्रोसेस करे माइक्रो प्रोसेसर. और जो रिजल्ट आया है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, उसको अगर डिस्प्ले करवाना है तो हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस का. So primary function of microprocessor is to accept data from input devices, read memory, and also to execute instruction. And to show results, microprocessor use output devices. So these are the general primary function of a microprocessor in microprocessor based system. Now here input devices and output devices which is connected to microprocessor. So these input output devices is also known as peripherals. Peripherals means input output devices which is connected to microprocessor is known as peripherals or input outputs. So input output devices which is connected to microprocessor. Now we will study about interfacing devices. So what is interfacing devices? In microprocessor based system, microprocessor is connected to peripherals, that is input output devices.
So microprocessor unit, and this microprocessor unit is connected to input output devices, that is peripherals. Example: keyboard, monitor. So these peripherals are connected to microprocessor. Not directly this is connected, but we use interfacing devices in between the peripherals and microprocessor unit. So इंटरफेसिंग डिवाइसेस का काम क्या हुआ कि वो पेरिफेरल्स को और माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा. सो इंटरफेसिंग डिवाइस क्या करता है कि माइक्रो प्रोसेसर को इनेबल करता है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके पेरिफेरल्स से. तो व्हाट इज इंटरफेसिंग डिवाइस? इंटरफेसिंग डिवाइस इज पेरिफेरल्स. On this interfacing device is made up of different types of logic circuits. In digital electronics, there are different types of logic circuit that is used to make these interfacing devices. And also we use programming to program these interfacing devices. Suppose in peripherals we want input devices to connect to microprocessor. So by programming we will enable these interfacing devices as a input device, and if we want to connect output devices to this microprocessor, then this interfacing devices is programmed so that these peripherals will work as a output devices. So in interfacing, what we do? We design logical circuit and write instruction, that is we program these interfacing devices to enable the microprocessor to communicate with these peripherals. And this logic circuit is known as interfacing devices. So if we have to connect any peripheral to microprocessor, so we use interfacing devices in between that will enable the microprocessor to communicate with these peripherals. Now what is the different types of data transfer scheme? So in microprocessor based system, input output is connected to microprocessor and the data transfer is take place between input devices to microprocessor, or the data which is saved in memory, we use this data to transfer to microprocessor, or microprocessor send data to memory also. And output devices we also use output devices to send data from microprocessor to output devices. So data transfer take place between input devices to microprocessor, memory and microprocessor to output devices. So what is the problem between this data transfer is कि the speed of microprocessor to process any data. Suppose we have to transfer data from microprocessor to this memory. तो माइक्रोप्रोसेसर का जो डाटा ट्रांसफ़र का स्पीड होगा वो अलग होगा, एंड मेमोरी का जो डाटा ट्रांसफ़र का स्पीड होगा वो अलग होगा. जैसे कि सपोज इन आउटपुट डिवाइसेस वी आर यूजिंग प्रिंटर. सो प्रिंटर क्या करता है कि डाटा को प्रिंट करता है.
सो ये स्लो प्रिंट करता है। तो इसमें जो डाटा सेंड करने का स्पीड होना चाहिए वो स्लो होना चाहिए। बट माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि बहुत तेजी से डाटा को आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफर कर सकता है। तो स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर doesn't match for microprocessor and peripherals. So in between we are using interfacing devices to overcome this problem, and also to transfer data to these peripherals. There are different types of data transfer scheme. To overcome this problem due to mismatch of speed of data transfer between microprocessor to output devices or peripherals. Now in microprocessor, different modes of data transfer are parallel mode of data transfer, and second one is serial data transfer. And in parallel data transfer, there are three types of data transfer scheme. First one is programmed input output. And second one is interrupt driven input output. Second one is interrupt driven input output. And the third one is direct memory access. So first we will study about parallel data transfer. Parallel mode of data transfer. In parallel mode of data transfer, what will happen? Entire word is transferred at a time. Entire word means just like 8-bit data or 16-bit data. That entire word is transferred to peripherals at a time. Just like in 8085 में क्या होता है कि 8 बिट के डाटा 8 बिट का जो डाटा होगा वो पेरिफेरल्स में एक ही टाइम पे वो ट्रांसफर होगा। जैसे सपोज करो कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कोई 8 बिट का रजिस्टर है जिसमें कि डाटा सेव है, जैसे 01101001। सो ये 8 बिट का डाटा है जो कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है और इसको हमको पेरिफेरल्स में सेंड करना है यूजिंग पैरेलल मोड। तो वी हैव टू यूज 8 डाटा लाइंस टू ट्रांसफर दिस डाटा बिट टू पेरिफेरल्स। तो क्या हुआ कि एक ही साथ ये पूरा डाटा इस पेरिफेरल्स के रजिस्टर में या फिर इस मेमोरी लोकेशन में आ जाएगा।
So in parallel mode, the entire word is transferred at a time from microprocessor to peripherals. And parallel mode of data transfer is used in keyboard or 7-segment display. LEDs. And several data converters also use this parallel mode of data transfer. Data converter and memory. Now second one is serial mode of data transfer. सीरियल मोड ऑफ डाटा ट्रांसफर में क्या होता है कि एक टाइम में एक ही बीट ट्रांसफर होगा। यहाँ पे ये पूरा 8 बीट क्या हो रहा था, माइक्रो प्रोसेसर में एक ही साथ ट्रांसफर हो जा रहा था। लेकिन सीरियल मोड ऑफ डाटा ट्रांसफर में क्या होगा कि जैसे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कोई मान लो डाटा है, तो इसको अगर हमको पेरिफेरल्स में भेजना है तो सीरियल मोड में क्या होगा कि पहले जीरो ये फर्स्ट बिट जो है वो पहले ये पेरिफेरल्स में सेंड होगा। तो पहले फर्स्ट साइकिल में ये 0 इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर दूसरे टाइम में क्या होगा, 1 ट्रांसफ़र होगा, फिर ये वाला 1 फिर इसमें ट्रांसफ़र होगा, फिर 0 फिर 0। तो इस तरीके से वो 1 बाय 1 इसको डाटा को माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल्स में सेंड करते हैं इन सीरियल मोड ऑफ डाटा ट्रांसफर में। तो यहाँ डाटा ट्रांसफ़र के लिए हमको सिर्फ एक सिंगल लाइन ही यूज़ करना है, सिंगल लाइन ही यूज़ होगा। तो इस सिंगल लाइन में क्या होगा कि पहले एक बिट डाटा जाएगा, फिर दूसरा बिट डाटा जाएगा, फिर तीसरा बिट डाटा जाएगा। तो लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि हमको अगर 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो 8 बिट का डाटा लाइन्स चाहिए एक साथ इसको पेरिफेरल्स में भेजने के लिए इन पैरेलल मोड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। लेकिन सीरियल मोड में 1 बाय 1 क्या होता है, डाटा ट्रांसफ़र होता है पेरिफेरल्स में। तो एक ही हमको डाटा लाइन्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे बारी बारी से डाटा इसमें सेंड होगा। So in serial mode of data transfer, data are transferred from microprocessor to peripherals 1 bit at a time over a single line. तो जैसे कि हमको डाटा अगर सेंड करना है माइक्रो प्रोसेसर से, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से पेरिफेरल्स में डाटा ट्रांसफ़र करना है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो हम लोग सीरियल मोड डाटा ट्रांसफ़र यूज़ करेंगे या फिर पैरेलल मोड। तो पैरेलल मोड में क्या होगा कि हमको 8 लाइन्स चाहिए डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से पेरिफेरल्स में। बट इन सीरियल मोड वी हैव टू यूज़ ओनली 1 डाटा लाइन्स टू ट्रांसफ़र फ्रॉम microprocessor unit to peripherals। So सीरियल मोड में क्या होगा, डाटा ट्रांसफ़र ये थोड़ा चीफर होगा। लेकिन चूंकि पैरेलल मोड में हम लोग को 8 डाटा लाइन्स यूज़ करना पड़ रहा था तो ये कॉस्टियर होता है। तो इफ़ वी हैव टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू पेरिफेरल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वी यूज सीरियल डाटा ट्रांसफ़र। क्योंकि पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र में क्या होता है, ये एक्सपेंसिव हो जाता है, मोर कॉस्टियर हो जाता है। सो एग्जांपल्स ऑफ सीरियल डाटा ट्रांसफ़र इज CRT, कैथोड रे ट्यूब टर्मिनल,
Some printers also use serial mode of data transfer. Also cassette tape. Cassette tapes is also used for serial mode of data transfer. And telephone lines. Now see, माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट होता है, तो यहाँ पे 8 बिट डाटा हमेशा जनरेट होगा। तो अगर उसको हम लोग को किसी पेरिफेरल्स में भेजना है, जस्ट लाइक प्रिंटर, जो कि सीरियल मोड में डाटा एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमको इस पैरेलल मोड के डाटा को सीरियल मोड ऑफ डाटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम इसको प्रिंटर में भेज सकें। ठीक है, तो अगर कोई डेटा लाइन्स है जो कि पैरेलल मोड में काम कर रहा है और हमको किसी पेरिफेरल्स में इसको कनेक्ट करना है या फिर इस डाटा को सेंड करना है, तो हमको जो कि सीरियल मोड में डाटा लेगा, तो हमको पहले इसको पैरेलल मोड से सीरियल मोड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। पैरेलल टू serial converter. So for data transfer from microprocessor to peripherals, a word means 8 bit or 16 bit is converted into stream of 8 bit. यहाँ पे क्या है, word of 8 bit that is converted to word of 8 bit or 16 bit that is converted to stream of 8 bit. This is called parallel to serial mode of data transfer. And to convert serial to parallel, we are using serial to parallel converter. Serial to parallel, तो सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर का क्या काम है कि ये जो 8 बिट का स्ट्रीम है, 8 बिट का जो स्ट्रीम है डाटा का, उसको क्या करेगा, वो 8 बिट ऑफ वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। सो सीरियल टू पैरेलल डाटा कन्वर्टर इज यूज्ड टू कन्वर्ट 8 बिट of stream data to 8-bit word. So these are parallel mode of data transfer and serial mode of data transfer. In parallel mode 8 bit of data या फिर 16 bit of data और data word is sent to peripherals at a time. In serial mode, data are transferred from microprocessor to peripherals one by one over a single line. Now next is we have studied about parallel data transfer and serial data transfer. Now next is in parallel data transfer. First one is programmed input output data transfer. So what is program input output data transfer? प्रोग्राम इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफर में क्या होता है कि हम लोग प्रोग्राम का यूज़ करते हैं, यानी कि हम लोग पहले माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम करते हैं
डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए टू पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स के साथ जो अगर डाटा ट्रांसफ़र करना है हमको माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल्स में, तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे? प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे, यानी इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे डाटा ट्रांसफ़र के लिए। जैसे कि इन और आउट इंस्ट्रक्शन होता है माइक्रो प्रोसेसर में। इन क्या करता है कि पेरिफेरल से डाटा को इनपुट करवाता है, एंड आउट का क्या करता है कि जो भी डाटा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर है वो उस डाटा को अगर पेरिफेरल्स में या फिर किसी आउटपुट पोर्ट में सेंड करना है तो हम लोग आउट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो रहा है इसमें कि हम लोग प्रोग्राम करके डाटा को पेरिफेरल्स में सेंड करते हैं। तो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र क्या होगा? दिस मेथड यूज इंस्ट्रक्शन टू गेट द डाटा इनटू और आउट फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर। और ये जनरली जो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र है वो कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ की स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ठीक है, स्पीड इज़ यूनी इम्पोर्टेंस, देयर वी यूज़ अनइम्पोर्टेंस, देयर वी यूज़ माइक्रो प्रोसेसर मीन्स प्रोग्राम इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र। सो इन प्रोग्राम इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र देर आर two ways to transfer data. First one is synchronous data transfer and second one is asynchronous data transfer. First one is synchronous data transfer. And second one is asynchronous data transfer. Synchronous सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब माइक्रो प्रोसेसर का जो डाटा सेंड या एक्सेप्ट करने का स्पीड है और पेरिफेरल्स में जो डाटा को सेंड करने या फिर रिसीव करने का जो स्पीड है, अगर दोनों मैच करेगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सिंक्रोनस मोड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। यानी स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर शुड बी मैच्ड विथ पेरिफेरल्स, देन वी यूज़ सिंक्रोनस मोड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग कॉमन क्लॉक पल्स, जैसे माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, क्लॉक जनरेट होता है, इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे फंक्शंस होता है कि फर्स्ट क्लॉक पल्स में ये मीन्स एक मशीन साइकिल चलेगा, तो फिर सेकंड क्लॉक पल्स में क्या किस वर्क को हमको करना है वो इस क्लॉक पल्स पे बेस्ड होता है। जैसे कि डाटा ट्रांसफ़र करना है तो एक बीट मान लो एक क्लॉक पल्स में ट्रांसफ़र हुआ, तो सेकेंड बीट दूसरे क्लॉक पल्स में ट्रांसफ़र हुआ। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो भी क्लॉक पल्स जनरेट होगा वो सिंक्रोनाइज होगा किसके साथ? पेरिफेरल्स के क्लॉक पल्स के साथ। तो यहाँ पे हम कॉमन क्लॉक पल्स यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के लिए और पेरिफेरल्स के लिए। और इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र का जो स्पीड है दोनों का मैच कर रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ेगा कि हम डाटा ट्रांसफ़र के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से डाटा जैसे सेंड हुआ जिस स्पीड में, उसी स्पीड में डाटा यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर को वेट नहीं करना पड़ रहा है, कोई डिले नहीं हो रहा है इसमें। तो इन सिंक्रोनस मोड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र, synchronous mode of data transfer is used when the speed of input output device match with the speed of microprocessor, and here common clock pulse is used to synchronize microprocessor and peripherals. And third one is microprocessor don't have to wait for data. Microprocessor don't have to wait to transfer data to these peripherals.
because of the matching of the speed. And what is asynchronous mode of data transfer? We use, means microprocessor use asynchronous mode of data transfer when the speed of microprocessor doesn't match with the speed of peripherals. Just like in case of printers have to print the data, तो उसके प्रिंट करने का स्पीड क्या होगा, स्लो होगा. तो माइक्रो प्रोसेसर को अगर डाटा इसमें प्रिंटर में भेजना है तो उसको धीरे धीरे डाटा को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. लेकिन माइक्रो प्रोसेसर का कैपेबिलिटी है कि वो फास्ट डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, बट प्रिंटर कांट प्रिंट डाटा एट दैट फास्ट रेट. सो इसके स्पीड को हम लोग अगर मैच करवाना चाहेंगे तो इन बिटवीन हम लोग एक पेरिफेरल्स का यूज़ कर सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है और ये पेरिफेरल्स है. तो इन बिटवीन अगर हम एक इंटरफेसिंग डिवाइसेस लगा दें तो इस प्रॉब्लम को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं. स्लो डाटा ट्रांसफ़र को हम ओवरकम कर सकते हैं. पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, डाटा इंटरफेसिंग डिवाइस में सेंड करेगा, फिर इंटरफेसिंग डिवाइसेस फिर पेरिफेरल्स को सेंड करेगा. तो इस तरीके से हम लोग स्पीड को मैच करवाने के लिए हम लोग इंटरफेसिंग डिवाइस यूज़ करते हैं. तो असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र कब यूज़ होगा, यूज व्हेन द स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट इज स्लोअर देन द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, एंड because of mismatch of speed, microprocessor have to wait for this data transfer. माइक्रोप्रोसेसर को थोड़ा वेट करना पड़ेगा. और यहाँ पे जो क्लॉक पल्स हम लोग माइक्रोप्रोसेसर के लिए यूज़ करेंगे वो डिफरेंट होगा पेरिफेरल्स के लिए, क्योंकि इसका स्पीड और इसका स्पीड मैच नहीं कर रहा है.